وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ سیکنڈ لیکچر، اس سے پہلے ہمارا پہلا لیکچر ہو چکا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی، اس کا کوئک ریویژن کر لیتے ہیں۔ جو ہم سبق پڑھ رہے تھے، پہلا دو متغیری خطی مساواتیں، ایکویشنز ان ٹو ویریبلز۔ اس کے اندر ہم نے دو متغیری خطی مساوات، اس کی تعریف پڑھی کہ اس کی پہچاننے کا طریقہ کون سا ہے اور کس چیز کی وجہ سے یہ دو متغیری خطی مساوات ہوتے ہیں اور کس چیزوں کی وجہ سے یہ خطی مساوات نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھنے کے بعد یہ مثال اور یہ مثال حل کی۔ اس کے بعد یہ تمام مثالیں دو متغیری خطی مساوات ہے یا نہیں، اس میں سے میں نے کچھ کروائے تھے اور آپ کے لیے بھی کچھ SW دیا تھا، جو آئی ہوپ آپ نے معلوم کر لیے ہوں گے اور آپ کو بہت بہتر طریقے سے یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے جو پڑھا وہ ہے ہمزاد خطی مساواتیں۔ اس کے اندر ہم نے ہمزاد خطی مساواتیں کسے کہتے ہیں، اس چیز کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد اس کے طریقہ، پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ، دونوں طریقے پڑھ لیے تھے۔ دونوں طریقوں میں یہ ایک طریقہ اور یہ ایک طریقہ، سوال تو ایک ہی ہے مگر اسے حل کرنے کے دو الگ الگ طریقے ہیں، مگر اس کا جواب ایک ہی آیا، یعنی کہ ایکس کی جو ہماری قیمت آئی تھی وہ ایک آئی تھی دونوں جوابوں میں، اور وائی کی جو آئی تھی ہماری قیمت -1 آئی تھی۔ تو یہ چیز آپ نے کل دیکھی تھی اور اسے سمجھی تھی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم آگے بڑھیں گے مشق نمبر 1.1 کی طرف۔ مشق نمبر 1.1 بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، جو آپ نے طریقہ نمبر 1 میں جو سیکھا ہے وہی اس چیز کو آگے اپنے حل کرنا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے مشق نمبر 1.1، اس میں سوال نمبر 1 دیا ہوا ہے، درجہ ذیل عملی کام پورا کرتے ہوئے ہمزاد مساوات حل کیجیے۔ یہ سوال دیا ہوا ہے۔ اس سوال کے اندر بھی سیم اسی طریقے سے دو مساواتیں دی ہوئی ہیں۔ ان دو مساواتوں کو آپ کو حل کرنا ہے اور اس کا جواب ایکس کی قیمت اور وائی کی قیمت آپ نے معلوم کرنی ہے۔ اس کے بعد اسے کس طریقے سے حل کرنا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیے، آپ کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت۔ یہاں پر اس کے خالی باکسز بنے ہوئے ہیں، اسی کو صرف پر کرنا ہے، جیسے کہ میں ٹک کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، جیسے کہ یہاں پر بتایا ہوا ہے، یہ ایک مساوات ہے اور یہ ایک مساوات۔ ذرا دھیان سے سنیے اور دھیان سے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ SSC کے حساب سے یہ سوال آنے کے چانسز ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ ایکس کی ویلیو اور وائی کی ویلیو معلوم کیجیے۔ دیکھیے اس کے آگے، اس کے بعد مساوات نمبر 1، مساوات نمبر 2 وہ خود ہی سے ٹک کی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہمیں مساوات نمبر 1 میں اور مساوات نمبر 2 میں جو چیز آسانی سے کٹ سکتی ہے اسے پہلے کاٹنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر مساوات نمبر 1 جو ہماری ہے 5x + 3y = 9، اور مساوات نمبر جو 2 دی ہوئی ہے 2x - 3y = 12۔
इन दोनों मसावातों में मुझे एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है और आपको भी नज़र आनी चाहिए, वो है जमा 3y मनफी 3y, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी के बिना पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा अमल कर सकते हैं, इन दोनों को हमको आपस में काटना है। काटने की वजह से फिर x की वैल्यू हमको मिलेंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की जमा करेंगे। यहाँ पर जमा इसलिए हो रही है, मैं आगे बताऊँगा आपको। यहाँ पर हम पहले लिख देंगे मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। ये मसावत नंबर हमारी 1 है और ये है मसावत नंबर 2। इसे करना है हमको जमा करने के बाद, जब आप जमा का अमल क्यों कर रहे हैं मैं अब बताता हूँ। जब भी किसी दो मसावातों की जमा होती है तो उनके अलामतों की भी जमा या मनफी होती है। अब मैं आपको समझाने के तौर पर यहाँ पर बताता हूँ कि ये नीचे वाली जो लाइन बनी हुई है, ये वाली, ठीक है, इस लाइन के नीचे भी जमा और मनफी की अलामतों का जमा या मनफी होता है। जैसे कि 2x की पहले से जो अलामत है वो है जमा। अब यहाँ पर हम जमा का अमल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी लगाएंगे हम जमा, यहाँ पर भी लगाएंगे हम जमा, यहाँ पर भी लगाएंगे हम जमा। अब क्या करना है, पहली वाली मसावत की अलामत को बाद वाले जमा की करने पर हम उसको अपडेट करेंगे, यानी कि उसको किस तरीके से करना है उसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पहले 2x की वैल्यू, 2x की अलामत जमा है और हम इसे जमा कर रहे हैं तो जमा जाहिर सी बात है, आपको भी पता है जमा ही होता है। अब मनफी और जमा ये आपस में जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इन दोनों को जमा और मनफी हमेशा याद रखिए, हमेशा मनफी की अलामत होंगी। और उसके बाद पहले से ही 12 के साथ जमा लगा हुआ था और हमने जमा का अमल किया तो जमा यहाँ पर भी क्या होगा, जमा होगा। ये बात इसमें समझने की है कि हमने जमा की अलामत इसलिए की, जब जमा 3y और मनफी 3y आपस में हमको कट करना है तो कट करने के लिए एक चीज़ हमें याद रखनी है कि दोनों अददों की अलामतें हमको एक तो जमा चाहिए और दूसरे की मनफी चाहिए, या फिर मनफी जमा, यानी कि दोनों को एक दूसरे से अपोजिट रखना है। जब दोनों एक दूसरे की अलामतें अपोजिट होंगे तो ये आपस में जमा 3y और मनफी 3y कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की जमा की। आया अब आपके समझ में? इसलिए यहाँ पर हम जमा का अमल करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे, सिंपल, अभी हमने जमा 3y और मनफी 3y को कट कर देना है। अब जो बचेगा हमारा यहाँ पर नीचे वाले खाली डब्बे में लिखना है। अब 5 और 2 की जमा कीजिए तो आपको भी पता है इसका जवाब आता है 7। उसके बाद 9 और 12 की जमा करने के बाद इसका जवाब आता है, आपको भी पता है, 21। अब उसके बाद हमको क्या करना है, जो x के साथ जो 7 लगा हुआ है इन दोनों के बीच में ज़रब की अलामत है जो हमको दिखाई नहीं देती, वो समझना पड़ता है। अब क्या करना है, इस 7 को हमको उठाना है और इधर 21 के पास भेजना है। अब 21 के पास भेजने के लिए आपको पता है उसके कुछ उसूल है कि जब भी एक अदद मसावी के दूसरे जानिब जाता है तो उसकी अलामतें तब्दील होती हैं। जैसे कि इन दोनों के बीच में कौन सी अलामत है, 7 और x के बीच में ज़रब की अलामत है, ठीक है। तो जब भी ज़रब का मसावी के दूसरी जानिब जाएगा वो उसके बटे में चले जाता है, यानी कि उसके तकसीम में चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद दोनों की हमको क्या करना है, तकसीम करना है। जैसे कि 7 एकन 7 और 7 तिया 21, जो हमारा जवाब आएगा 3/1। इसका जवाब आएगा जो हमारा 3/1। मगर आपको ये भी मालूम है कि बटे 1 को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए हमारा जवाब आएगा 3, यानी कि हमारी x की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारी 3। अब बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसी x की वैल्यू 3 को हमको सीधा उठाकर कहाँ रखना है, मसावत नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई मसला नहीं। अब x की वैल्यू जैसे ही मालूम हो जाएंगी आपको उसी को उठाकर एक तो मसावत नंबर 1 में रखिए या मसावत नंबर 2 में रखिए, ये चीज़ समझना है।
अब रखने के बाद हम किस में रखना चाहते हैं, चलिए हम रख देते इसे मसावत नंबर 1 में। तो उसके लिए ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर कौन सा अमल कर रहे हैं, ये चीज़ इसमें याद रखनी है। जैसे कि x की कीमत आई हमारी 3, यानी कि x मसावी 3 मसावत नंबर 1 में रखने पर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको लिख कर बता देता हूँ मसावत नंबर 1 कौन सी है, 5x जमा 3y मसावी 9, ये याद है। ये देखिए अब क्या करना है, हमको x के ऊपर क्या रखना है, 3 रखना है। तो ये मसावत नंबर हमने x के ऊपर 3 रख दिया, बाकी जैसे कि पूरी मसावत जैसे कि वैसी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमको करना है 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। तो ये आ जाएगा 15। इस 15 को उठाकर हमने क्या करना है, 9 के पास भेजना है। क्या करना है, 9 के पास भेजना है। तो 5 से 15, अभी इसकी अलामत है जमा। जब मसावी के अदद, जब कोई जमा का अदद है उसे मसावी के दूसरी जानिब भेज देते हैं तो वो चला जाएगा मनफी में। तो यहाँ पर आ जाएगा मनफी का 15। ये इतना समझिए, ठीक है। उसके बाद 9 में से अगर हम 15 निकालते हैं तो नहीं जाता, 15 में से 9 निकालिए तो बचता है, कितना बचेगा, 6। अब 9 और 15 में दोनों में बड़ा अदद कौन सा है वो देखिए जी, 15 बड़ा अदद है। 15 के साथ कौन सी अलामत लगी हुई है, ये वाली मनफी। तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा मनफी आएगा। उसके बाद क्या करना है, 3 और y जो इस तरीके से है, 3 ज़रब y इस फॉर्म में है वो, तो इसको क्या करना है, हमको 3 को अलग कर कर मसावी के दूसरे जानिब यानी कि 6 के मनफी 6 के पास भेजना है, यहाँ पर भेजना है हमको इसे। तो आपको पता है कि अगर कोई अदद ज़रब में है मसावी के दूसरी जानिब जाने पर वो किस में जाएगा, जाहिर सी बात है बटे में जाएगा। ये यहाँ पर बटे में चला गया और यहाँ पर हमारा है मनफी 6, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हमको क्या करना है, तकसीम करना है। 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और साथ में इसका मनफी इसके साथ लग जाएगा। अब यहाँ पर हमारी जो कीमत आई है मनफी 2/1। आपको अभी मैं बताया हूँ कि बटे 1 की वैल्यू जो कीमत होती है उसे काउंट नहीं की जाती, इसलिए हमारे y की जो कीमत आएंगी वो आएंगी y मसावी मनफी 2। अब यहाँ पर इसी को x की कीमत और y की कीमत हम इसके बॉक्सेस में लिख लेते हैं। x की वैल्यू आई थी हमारी 3, एक मिनट, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है मनफी 2। यही है हमारे x और y की कीमत जो हमने हमजाद मसावत के तरीक़े से हल किया है। किसके तरीक़े से, हमजाद मसावत को हल किया है हमने भी। यह है हमजाद मसावत, याद रखिए इस तरीक़े से इसको करना है। मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी, ये बात याद रखिए। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर कोई अदद जमा का है उसे मसावी के दूसरे जानिब भेजने पर वो क्या होता है, अगर कोई अदद मनफी में उसे मसावी के दूसरे जानिब पर दूसरे तरफ जाने पर क्या होगा, क्या तब्दीली होंगी उसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, गौर से देखिए। यहाँ पर बताता हूँ मैं, ज़रा गौर से। अगर कोई अदद जमा में है उसे हम मसावी के दूसरे जानिब भेज देते हैं तो वो अदद तब्दील होकर मनफी हो जाएगा। अगर कोई अदद मनफी में है उसे जब मसावी के दूसरे जानिब भेज दिया जाता है तो वो उसकी अलामत जो तब्दील होंगी जमा में होंगी। उसके बाद अगर कोई अदद, इसके बाद ये भी देखिए, ये है जमा और तफरीक, जमा और तफरीक। अब देखिए ज़रब और तकसीम। अब क्या होगा, अगर कोई अदद ज़रब में है उसे मसावी के दूसरे जानिब भेज दिया जाता है तो वो खुद ब खुद
तकसीम में चला जाएगा, यानी कि बटे में चला जाएगा। अगर कोई अदद तकसीम में है या बटे में है, अगर उसे मसावी की दूसरी जानिब भेज दिया जाता है, उस तकसीम बटे वाले अदद को वो खुद ब खुद ज़रब में चला जाएगा। यही चीज़ है बेसिक इस हमजाद मसावत को हल करने के लिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे याद रखिए या अपनी अपनी बयाज़ों में लिख कर रखिए। ये पूरे सबक में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। इसे याद नहीं रखना है, बस आपने सिंपल तरीका, जमा का उलट क्या है मनफी, मनफी का उलट क्या है जमा, इन दोनों की जोड़ी बनाइए। उसके बाद ज़रब और तकसीम की जोड़ी बनाइए। ज़रब का उधर जाने पर तकसीम, तकसीम का उधर जाने पर ज़रब, यानी कि दो की जोड़ी बनाना है अपने, जमा मनफी ज़रब तकसीम, दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। और कुछ भी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी सिंपल सादा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने जो अभी सवाल हल किया है मश्क नंबर 1.1 का, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। आपने इसे याद रखना है और हल करना है। ये इस तरीके के सवालात एसएससी बोर्ड इम्तिहान के अंदर 2 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए पूछता है। या फिर अगर आपको उसने बताया कि इस डब्बे की x की वैल्यू इतनी कीमत मालूम करिए या सिर्फ इतनी कीमत मालूम करिए, तो ये सवाल 1 नंबर के लिए, ये सवाल 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। अगर उसने कहा है कि अगर x और y की वैल्यू दोनों भी मालूम कीजिए, तो इस तरीके के सवाल 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और 2 मुतग़य्यर ख़ती मसावत में बहुत सारे सवाल एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं हमजाद मसावत के ताल्लुक़ से, जिसमें आपको x और y की वैल्यू या x और y की कीमत मालूम करना होता है। तो आई होप आपको ने पूरी आज का हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। मैं रोज़ इसी तरीक़े से सवालात और उनके जवाबात आपको समझाता रहूँगा, और रोज़ बरोज़ ही हमारी क्लास होंगी। सिर्फ आपने यूट्यूब पर जाना है और मेरा नाम का जो चैनल है शेख फ़रदीन, इस चैनल पर जाकर उसी चैनल के बाजू में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ये देखिए, इस तरीके से रेड कलर में सब्सक्राइब, इस तरीके से ऐसा बॉक्स की शक्ल में होता है। आपने जाना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, जब भी मैं आइंदा जो भी वीडियो मेरे चैनल पर डालूँगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर या मोबाइल पर पहुंच जाएंगी। और साथ में एक घंटी का भी ऑप्शन होता है, उसे इस तरीके से कुछ, तो उसे भी क्लिक करना है, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पूरी समझे होंगी। आपने इसे प्रैक्टिस करना है, इसकी तरीक़ा एक के तरीके से जो हमने आज सवाल हल किया है इसे याद रखना है, और याद रखिए मश्क नंबर जो हमारा 1 का सवाल है इसे अच्छे तरीके से हल करना है। आई होप आपको मेरी पूरे लेक्चर समझा होगा। इसी को आज हम इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त और मैं इस चीज़ की उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का ऑप्शन भी दबा देंगे। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और रोज़ बरोज़ हमारे चैनल पे रियाजी के मुतालिक वीडियो आती रहेंगी। तो दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।